Hello everyone, in this video we are going to discuss product liability action under the Consumer Protection Act of 2019. Product liability action 1986 एक्ट में एंड उससे पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. 2019 एक्ट से ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है विद इन द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. हम अच्छे से जानते हैं कि पहले जो प्रिंसिपल एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को गवर्न करता था वो था केवियट एम्प्टर, which means let the buyer beware. बट ये प्रिंसिपल ऑफ कोर्स चेंज हुआ, थोड़ा अमेंड हुआ हमारा 1986 एक्ट से. एंड by the introduction of product liability action under the Consumer Protection Act of 2019, इस प्रिंसिपल का इफेक्ट काफी हद तक अब वीक हो गया है. दैट मीन्स नाउ बायर इज नॉट इन अ वीक पोजिशन. नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन द पोजिशन ऑफ द बायर हैज बीन स्ट्रेंथेंड. So let's come to the statutory provisions first. Chapter 6 of the Act, it deals with product liability. Now the question arises is what is product liability action? So Section 83 defines product liability action. It may be brought by a complainant against a product manufacturer or a product service provider or a product seller, as the case may be, for any harm caused to him on account of a defective product. अगर किसी भी बायर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है जिसकी वजह से उसको किसी भी तरह का कोई हार्म कॉज हुआ है, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर या फिर जो प्रोडक्ट सेलर है वो या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है वो, इन तीनों में से जो भी कंसर्न पार्टी है जिसने डिलीवर किया है वो प्रोडक्ट या वो सर्विस, वो लायबल होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन अंडर द एक्ट. Section 82, application of chapter. This chapter shall apply to every claim for compensation under a product liability action by a complainant for any harm caused by a defective product manufactured by a product manufacturer or serviced by a product service provider or sold by a product seller. That means the relief that we are talking about here is compensation. Product liability action जो lie करेगा, जो consumer forum में जाएगा, वो किस relief के लिए जाएगा? Compensation के लिए जाएगा. This particular chapter is specifically dealing with the compensation part that is associated with the product liability action. Now section 84, 85 and 86 defines the liability of various parties. First of all, section 84 defines the liability of product manufacturers. A product manufacturer shall be liable in a product liability action if the product contains a manufacturing defect or the product is defective in design, there is a deviation from manufacturing specifications, जो specifications defined है उस product के उन्हीं से deviate कर रहा है वो particular product या उसका manufacturing process. The product does not conform to the express warranty. जो वारंटी दी गई है बायर को, प्रोडक्ट उससे कंफर्म नहीं कर रहा, तो उस केस में भी then the product fails to contain adequate instructions of correct usage to prevent any harm or any warning regarding improper or incorrect usage. So basically जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, उस पर डायरेक्शंस फॉर यूज़ नहीं दे रखे हैं या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पैकेजिंग पर वार्निंग नहीं गिवन है जो एक्चुअली उस प्रोडक्ट के बायर को मिलनी चाहिए थी. सो उस केस में भी प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अराइज करेगा एंड द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर विल बी लाइबल. Then a product manufacturer shall be liable in a product liability action even if he proves that he was not negligent or fraudulent in making the express warranty of a product. So अगर मैन्युफैक्चरर ये प्रूव भी कर दे कि वो वारंटी देने में नेग्लिजेंट नहीं था और फ्रॉडुलेंट कंडक्ट नहीं था उसका, तब भी मैन्युफैक्चरर लायबल माना जाएगा. सो इन दिस कंटेक्स्ट देयर इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन्वॉल्व्ड. Section 85. Liability of product service provider. A product service provider shall be liable in a product liability action if the service provided by him was faulty or imperfect or deficient or inadequate in quality, nature or manner of performance,
which is required to be provided by or under any law for the time being in force or pursuant to any contract or otherwise. तो अगर कोई लॉ किसी पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ सर्विस को डिफाइन करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफाइन हुई थी या फिर एक नेचर ऑफ सर्विस डिफाइन हुआ था, एंड जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उस क्वालिटी से, उस नेचर से, उस स्पेसिफिकेशन से डिविएट करता है या एक डेफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करता है, then in that situation that service provider will be liable. B. There was an act or omission or commission or negligence or conscious withholding any information which caused harm. कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उस सर्विस के रिगार्डिंग जो बायर को मिलनी चाहिए थी और वो उसे नहीं मिली बिकॉज द सर्विस प्रोवाइडर हैज़ कॉन्शियसली विदहेल्ड दैट इन्फॉर्मेशन. सर्विस प्रोवाइडर ने कॉन्शियसली वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, वो अपनी पैकेजिंग पर नहीं दी या वो सर्विसेज के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस में वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करी, देन इन दैट सिचुएशन द सर्विस प्रोवाइडर विल बी लायबल. The service provider did not issue adequate instructions or warnings to prevent any harm. कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना ज़रूरी था या कोई वार्निंग प्रोवाइड करनी ज़रूरी थी उस सर्विस के साथ, और वो अगर सर्विस प्रोवाइडर ने नहीं इशू करी है, देन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द सर्विस प्रोवाइडर इज लायबल. द सर्विस डिड नॉट कंफर्म टू एक्सप्रेस वारंटी और द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जो बायर और सर्विस प्रोवाइडर में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए थे या फिर कोई एक्सप्रेस वारंटी सर्विस प्रोवाइडर ने दी थी बायर को, एंड जो सर्विस है वो उस एक्सटेंट पर या उस वारंटी पर नहीं खड़ी उतरी, ठीक है, then in that situation also the service provider will be liable. Then section 86 talks about liability of product sellers. A product seller who is not a product manufacturer shall be liable in a product liability action. यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेलर की बात कर रहे हैं, और जब हम सेलर और मैन्युफैक्चरर के डिफरेंस की बात करें तो यू शुड नो कि मैन्युफैक्चरर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्स द गुड, ही प्रोड्यूसेस द गुड, बट एंड कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट जनरली मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली नहीं पहुंचाता है, वो एक प्रोडक्ट सेलर के थ्रू जो वेरियस इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होते हैं बीच में उनके थ्रू पहुंचता है. सो बेसिकली प्रोडक्ट सेलर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द फाइनल कंज्यूमर. So a product seller who is not a product manufacturer shall be liable in a product liability action if he has exercised substantial control over the designing, testing, manufacturing, packaging or labeling of a product that caused harm. अगर जो product seller है उसका भी manufacturer के साथ एक substantial शेयर इन्वॉल्व था उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी डिज़ाइनिंग में, उसकी पैकेजिंग में या लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट में, तो उस केस में प्रोडक्ट सेलर भी लायबल हो जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए. अगर प्रोडक्ट सेलर का सब्सटैंशियल कंट्रोल नहीं है इन सब एस्पेक्ट्स में, देन द सिचुएशन विल बी डिफरेंट, ही विल नॉट बी लायबल. बट अगर उसका एक सब्सटैंशियल कंट्रोल है तो उस केस में मैन्युफैक्चरर के साथ वो भी लायबल हो जाएगा. He has altered or modified the product and such alteration or modification was the substantial factor in causing the harm. प्रोडक्ट सेलर ने अपने एंड से ऑल्टर किया है प्रोडक्ट को या फिर मॉडिफाई किया है प्रोडक्ट को, एंड अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाइड प्रोडक्ट या वो ऑल्टर्ड प्रोडक्ट आगे कंज्यूमर को सेल किया है, ठीक है. अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर नहीं लायबल होगा बिकॉज मैन्युफैक्चरर ने अपने एंड से सही प्रोडक्ट डिलीवर किया था सेलर को. यहाँ पर सेलर के मॉडिफिकेशन की वजह से या ऑल्ट्रेशन की वजह से कंज्यूमर को हार्म कॉज हो रहा है. इन दिस सिचुएशन द सेलर विल बी लायबल एंड नॉट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर. C. He has made an express warranty of a product independent of any express warranty made by a manufacturer and such product failed to conform to the express warranty made by the product seller which caused the harm. जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, मान लो A है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसने बी को वो कुछ अपने प्रोडक्ट्स दे दिए कि वो आगे फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाए. अब बी ने क्या किया, उसको सेल करने के लिए सी को सेल कर दिया, डी को सेल कर दिया एंड ई को सेल कर दिया, ठीक है. सो सी डी एंड ई आर फाइनल कंज्यूमर्स.
बट यहाँ पर ए ने अपना प्रोडक्ट जब बी को डिलीवर करा तो कोई वारंटी नहीं दी थी उस प्रोडक्ट की, कोई एक्सप्रेस वारंटी नहीं दी थी ए ने, बट बी ने उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आगे सी और डी के आगे एक्सप्रेस वारंटी दी है। अब इस केस में अगर सी और डी को कोई भी हार्म कॉज होता है उस प्रोडक्ट से तो ए लायबल नहीं होगा, यहाँ पर बी लायबल होगा, बिकॉज एक्सप्रेस वारंटी बी के एंड से मिली है एंड मैन्युफैक्चरर के एंड से नहीं मिली है। So in this case, the product seller will be liable and not the product manufacturer, because the express warranty that has been given by him is independent of any kind of warranty that should have been given by the product manufacturer. D. The product has been sold by him and the identity of product manufacturer of such product is not known, or if known, the service of notice or process or warrant cannot be effected on him, or he is not subject to the law which is in force in India, or the order, if any, passed or to be passed cannot be enforced against him. मान लो कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सेलर सेल कर रहा है बट उसका मैन्युफैक्चरर कौन है ये प्रोडक्ट सेलर को भी नहीं पता, ठीक है, सो मैन्युफैक्चरर अननोन है, या फिर मान लो वो नोन है बट वो किसी फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन का है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज। सो इन सब कंटेक्स्ट में प्रोडक्ट सेलर लायबल हो जाएगा एंड नॉट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। E. He failed to exercise reasonable care in assembling, inspecting, or maintaining such product, or he did not pass on the warnings or instructions of the product manufacturer regarding the dangers involved or proper usage of the product while selling such product, and such failure was the proximate cause of the harm. प्रोडक्ट सेलर को मैन्युफैक्चरर ने एक्सप्लिसिटली बोला था कि अगर आप ये प्रोडक्ट आगे किसी को भी सेल करते हैं उनको साथ में ये वार्निंग्स देना, उनको साथ में बताना, मान लो कोई कपड़ा है तो वो कैसे वॉश किया जाना चाहिए, उसका कोई अगर स्पेशल वॉशिंग मैकेनिज्म है तो वो बताना चाहिए, ठीक है, कोई कार है तो उसके कंटेक्स्ट में अगर स्पेसिफिक वार्निंग देनी चाहिए थी और वो प्रोडक्ट सेलर नहीं देता है आगे वार्निंग एंड कंज्यूमर को, तो उस केस में प्रोडक्ट सेलर लायबल होगा एंड नॉट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, बिकॉज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने सेलर पर ट्रस्ट करके उसको अपने एंड से सारी इन्फॉर्मेशन बता दी थी जो उसे आगे कंज्यूमर तक कन्वे करनी थी। ऑल्सो अगर प्रोडक्ट सेलर प्रोडक्ट की असेंबलिंग में या फिर उसकी मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर वो उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करता है, ध्यान नहीं रखता है, उधर उसका एक नेग्लिजेंट एटीट्यूड इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में भी प्रोडक्ट सेलर लायबल होगा एंड नॉट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। Section 87. Exceptions to product liability action. A product liability action cannot be brought against the product seller if at the time of harm the product was misused, altered or modified. Product seller liable नहीं होगा अगर यूज करते टाइम जो प्रोडक्ट है वो मॉडिफाई किया गया हो, वो ऑल्टर किया गया हो या फिर वो मिसयूज किया गया हो। Then, in any product liability action based on the failure to provide adequate warnings or instructions, the product manufacturer shall not be liable if the product was purchased by an employer for use at the workplace and the product manufacturer had provided warnings or instructions to such employer. Product manufacturer liable नहीं होगा अगर warnings के context में उस पर एक liability impose करने का try किया गया हो, but if the product has been purchased by the employer for its use at a particular workplace and वो workplace में उसने proper warnings भी issue करी है उस employer के आगे, तो उस case में manufacturer नहीं liable होगा। The product was sold as a component or material to be used in another product and necessary warnings or instructions were given by the product manufacturer to the purchaser of such component or material, but the harm was caused to the complainant by use of the end product in which such component or material was used. तो अगर मान लो जो प्रोडक्ट है वो किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होना था, ठीक है, एंड जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपने एंड से सफिशिएंट वार्निंग्स दी है एंड उसके बाद जब वो फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है, वो जब आगे एंड कंज्यूमर के पास जाता है तो उससे हार्म कॉज होता है, तो इस केस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं लायबल होगा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रोडक्ट हैज़ बीन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट एंड सेकेंड थिंग इज द मैन्युफैक्चरर हैज़ गिवन
sufficient warnings regarding that particular product. C. The product was one which was legally meant to be used or dispensed only by or under the supervision of an expert or a class of experts, and the product manufacturer had employed reasonable means to give the warnings or instructions for usage of such product to such expert or class of experts. So basically अगर जो product है वो सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट में यूज़ होना चाहिए था, ठीक है, या फिर एक क्लास ऑफ एक्सपर्ट्स की सुपरविजन में यूज़ होना चाहिए था, एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने इस चीज़ की वार्निंग भी दी थी कि ये एक्सपर्ट सुपरविजन के बिना मत यूज़ करना, बट आगे जो कंज्यूमर है वो बिना एक्सपर्ट सुपरविजन के उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेता है, देन इन दैट केस मैन्युफैक्चरर विल नॉट बी लायबल. डी. The complainant, while using such product, was under the influence of alcohol or any prescription drug which had not been prescribed by a medical practitioner. अगर complainant alcohol के इन्फ्लुएंस में प्रोडक्ट यूज़ करता है या फिर किसी ऐसे ड्रग के इन्फ्लुएंस में उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है जो उसे किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने नहीं प्रेस्क्राइब करी है, देन इन दैट सिचुएशन द मैन्युफैक्चरर इज नॉट लायबल. एंड थर्ड, a product manufacturer shall not be liable for failure to instruct or warn about a danger which is obvious or commonly known to the user or consumer of such product, or which such user or consumer ought to have known, taking into account the characteristics of such product. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नॉर्मली कंज्यूमर को पता होता है कि ये पर्टिकुलर वार्निंग्स अटैच्ड है उस प्रोडक्ट के साथ, एंड उस प्रोडक्ट को केयरफुली यूज़ करना चाहिए. सो बेसिकली इन दिस अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर विल नॉट बी लायबल अगर वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वार्निंग नहीं देता है, बट वो मानकर चलता है कि कंज्यूमर को वार्निंग होगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है इस चीज़ की, बिकॉज नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल कस्टमर इस प्रोडक्ट को यूज़ करता तो उसको पता होता कि इसको कैसे यूज़ करना है. तो इस केस में मैन्युफैक्चरर नहीं लायबल होगा बिकॉज उसने एक नॉलेज इम्प्यूट कर ली थी जो नॉर्मली उस क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स को पता होती है. दीज वर सम ऑफ द प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट लायबिलिटी, एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 में इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है इस एक्ट में, एंड इससे पहले डिफरेंट इंस्टांसेस के थ्रू जनरल प्रोविजंस थे जो इस एस्पेक्ट से डील करते थे, बट कोई स्पेसिफिक लाइबिलिटीज इन्वॉल्व नहीं थी, स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं थे इस कंटेक्स्ट में. सो दैट इज वाई चैप्टर 6 इज इम्पॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019.